کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کے بارے میں سنا ہے جہاں ایک ولی اللہ نے دنیا کی بھیڑ سے دور رہ کر اپنے رب کی عبادت اور ذکر میں وقت گزارا ہو؟ کیا آپ نے کبھی ایسی بارگاہ کے بارے میں سنا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک زمانے میں اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزرتا تھا؟ آج ہم خلد آباد شریف کی دو ایسی روحانی جگہوں کی زیارت کریں گے، حضرت خواجہ شیخ منتظب الدین زرزری زربخش رحمت اللہ علیہ کا مقدس ٹلہ اور حضرت رازو قتال حسینی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ۔ تو آئیے ادب کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا یہ روحانی سفر۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر خلد آباد روحانی زیارت۔ اولیاء کرام کی اس مقدس سرزمین پر ہر درگاہ، ہر چلہ اور ہر پرانا مقام اپنے اندر کوئی نہ کوئی روحانیات سمیٹے ہوئے ہے۔ آج ہمارا سفر ہمیں ایک ایسے مقام کی طرف لے جا رہا ہے جہاں ایک اللہ والے نے اپنی روحانی زندگی کا ایک اہم حصہ دور عبادت اور مجاہدے میں گزارا۔ ہم جا رہے ہیں حضرت خواجہ شیخ منتظب الدین زرزری زربخش رحمت اللہ علیہ کے مقدس چلے کی طرف۔ خلد آباد شریف کی اسی روحانی سرزمین پر موجود ہے حضرت خواجہ شیخ منتظب الدین زرزری زربخش رحمت اللہ علیہ سے منسوب یہ مقدس چلہ۔ لیکن آخر چلہ کیا ہوتا ہے؟ تصوف کی روایت میں چلہ اس روحانی عبادت اور مجاہدے کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نیک بندے دنیا کی مشغولیتوں سے الگ ہو کر تنہائی میں اپنے رب کی عبادت، ذکر و اذکار اور تصوف میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ صرف تنہائی میں بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پا کر دل کو دنیا کی بیکار باتوں سے ہٹا کر اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت زرزری زربخش رحمت اللہ علیہ نے دکن کی اس سرزمین پر اپنی روحانی زندگی کا ایک اہم دور عبادت اور مجاہدے میں گزارا۔ اس خاص مقام پر انہوں نے کتنے سال چلہ کشی فرمائی، اس کی کوئی پکی تصدیق شدہ جانکاری اپلبدھ نہیں ہے، اس لیے ہم کسی طے مدت کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن یہ مقام ان کی عبادت، تنہائی اور روحانی مجاہدے کی یاد سے جڑا ہے۔ جب ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف پتھروں اور دیواروں سے بنا کوئی پرانا مقام نہیں بلکہ اس روحانی سفر کی نشانی ہے جس میں اللہ والے نے اپنے رب کی رضا اور قربت کو سب سے اوپر رکھا۔ اس جگہ کی سادگی اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کرتی ہے۔ یہاں کوئی دنیاوی شان و شوکت نہیں، لیکن ایک الگ طرح کا سکون اور خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی طاقت اس کے مال اور شہرت میں نہیں بلکہ اس کے صبر، اس کے اخلاق اور اللہ کے ساتھ اس کے تعلق میں ہوتی ہے۔ آج بھی یہ چلہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اصلی دولت دنیا کی چمک دمک میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد اور اس کے قریب ہونے میں ہے۔ ہم ادب کے ساتھ اس مقدس چلے کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے دلوں کی اصلاح کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت زرزری زربخش رحمت اللہ علیہ کے اس مقدس چلے کی زیارت کے بعد اب ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں ایسی بارگاہ کی طرف جس کے بارے میں یہاں ایک مشہور روایت بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دور میں اس بارگاہ کا ایسا جلال تھا کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزرتا تھا۔ آخر کون ہے یہ بزرگ اور اس جگہ کو پرندے کی مزار کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے اب چلتے ہیں حضرت سید راجو قتال حسینی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں حضرت سید راجو قتال حسینی رحمت اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں۔ خلد آباد شریف میں یہ مقام استھانی طور پر پرندے کی مزار کے نام سے مشہور ہے، لیکن آخر اس جگہ کو پرندے کی مزار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں
यहाँ के खादिम साहब से मिलता है। ये हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद है। आपका नाम जो है हजरत सैयद राजू खत्ताल है लक़ब, और पूरा नाम है हजरत सैयद शाह यूसुफ मोहम्मद शाह राजू खत्ताल हुसैनी। तो आप ख्वाजा बंदा नवाज के नाम से पहचाना जाता। कहाँ जा रहे तो बोले बंदा नवाज गेसो दराज के वालिद के पास जा रहे। दूसरी बात जो है तो ये निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा है। तो खुल्दाबाद के अंदर 1400 पालकी आई थी, तो पहली पालकी में आप लोग आए थे, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद राजू खत्ताल हुसैनी। तो आप निजामुद्दीन औलिया का हुक्म था कि खुल्दाबाद में जाके आप जो है तो अपने अपने मकाम पे जाइए, और जिसको जो खुल्दाबाद की जगह पसंद आ गई तो आप वहीं रह जाइए। तो आपको जो है तो जगह अच्छी लगी और आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी। निजामुद्दीन औलिया ने जैसा हुक्म दिए थे तो फिर आपका यहाँ पे फिर आपका पर्दा हो गया, इंतकाल हो गया। फिर इंतकाल जब हुआ तो किसी को मालूम नहीं हुआ कि आपका इंतकाल हुआ, उसका कोई तस्करा नहीं है। लेकिन ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज हर बुजुर्ग के पास जाते थे तो बोलते थे आगे जाओ आगे जाओ। तो सैयद ज़ैनुद्दीन बाविस ख्वाजा के पास में आपको जो है तो इशारा मिला बंदा नवाज को कि आप जो है तो चांदनी हॉल के तरफ आपके वालिद यहाँ आराम कर रहे। तो एक खादिम दिए उस ज़माने में बाविस ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने, हम बाविस ख्वाजा बोलते लेकिन उनका नाम है सैयद ज़ैनुद्दीन बाविस ख्वाजा, लक़ब है आप। तो फिर इस जगह पे आए बंदा नवाज। आने के बाद में आपके पास में कुछ पढ़ाइयाँ थी, आपने पढ़े तो बोले बाविस ख्वाजा ने बोले कि मेरे वालिद यहाँ आराम कर रहे तो पूरा जंगल छान मारे तो कहीं दिखा नहीं। तो आपको एक थोड़ा सा इशारा हुआ कि बंदा नवाज गेसो दराज आप थोड़ा आगे आइए। तो आप आगे आए। आने के बाद में वो जो खादिम दिए थे बाविस ख्वाजा ने, तो वो खादिम की उम्र ज़्यादा थी और बंदा नवाज थोड़े उनके नॉर्मल में थे, लेकिन रुतबा बंदा नवाज का बड़ा था। आप आले रसूल के ख़ानदान के, हम तो खादिम ज़ात हैं, हम तो हर एक की इज्जत करते। तो बोले बंदा नवाज आप आगे आइए, हो सकता आपके वालिद यहाँ कहीं आराम फरमा रहे। तो आपके पास में वो खुशकुल खबर पड़ी थी बंदा नवाज की, वो आपने यहाँ पे बैठ के देखे तो अंदर से उस जमाने में थोड़ा बहुत सलाम कलाम का जवाब मिला और आपको पूरा यकीन हो गया बंदा नवाज को कि हमारे वालिद यहाँ आराम। तो आपने खुद बोले थे बंदा नवाज तुम बहुत जिद्दी है, आपने हमको ढूंढ के निकाले है, तो हमारा कुछ इदारा यहाँ कायम करो और हमारे बड़े बेटे को हमारे पास ला के छोड़ो। ये चंदा हुसैनी बाहर है सफ़ेद जाली में, बंदा नवाज के बड़े भाई है हजरत सैयद राजू खत्ताल हुसैनी के बड़े फर्जंद चंदा हुसैनी, छोटे फर्जंद बंदा नवाज गेसो दराज जो गुलबर्गा में आराम कर रहे हैं। तो बंदा नवाज ने फिर बड़े भाई को भी बुलाए, फिर बड़े भाई को बुलाए। बड़े भाई को बुलाने के बाद में आपको जो है तो कुछ दिन रहे यहाँ पे बंदा नवाज, इबादतें करे, छिल्ले करे। तो ये बंदा नवाज ने ये गुम्बद वगैरह जो है तो बंदा नवाज की निगरानी में बनी हमारे पास। जैसा बंदा नवाज का डोरेदार गुम्बद है इसी तरह वालिद का भी है, लेकिन वो बुलंदियों पे बंदा नवाज का, और ये अपने हिसाब से बनाया है। और यहाँ पे जो है तो एक परिंदे का मज़ार है छोटा सा, हजरत की गुम्बद पे से गया था उस जमाने में, तो परिंदे के दो टुकड़े। आपको जलाल मांगते थे आप अल्लाह ताला से, लेकिन अल्लाह ताला ने आपका जलाल उस टाइम में रोशन हर जगह पे कर दिया था। तो फिर मालूम पड़ा तो अल्लाह ताला से नफ्स में जलाल मांगे आपने, या अल्लाह ताला जितना जलाल देना है मेरी नफ्स में दो, मेरा खानदान बहुत बड़ा है और ये परिंदा जो मेरी इबादत में गया इसको जन्नत में मकाम है। तो वो परिंदे का मज़ार बाजू में है, वो मैना का वाक़िया है। फिर एक किताब में जुमला लिखा गया कि ये जलाली दरबार है, परिंदे भी पर नहीं मारते तो इंसान की क्या औकात है। तो फिर बंदा नवाज फिर गुलबर्गा चले गए। फिर गुलबर्गा जाने के बाद में कई करामतें विलायतें चली और बंदा नवाज का पूरा ख़ानदान जो है तो गुलबर्गा से है। तो इस जगह को जो है, और आपको कैसा पहचाना जाता, कहाँ जा रहे तो बोले बंदा नवाज के वालिद के पास जा रहे। ना यूसुफुल हुसैनी कोई बोलता, ना शाह राजू खत्ताल हुसैनी बोलता, सिर्फ बंदा नवाज के वालिद बोलता। तो आप बंदा नवाज गेसो दराज के वालिद है, आपका नाम शाह राजू खत्ताल हुसैनी है और आप लोग अंदर जाके ज़ियारत कर सकते हैं। इधर पहाड़ी पे, ये इधर पहाड़ी में भी तो जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह का छिल्ला मुबारक है जो अभी पहाड़ियों में झाड़ियों में थोड़ा छुप गया, ऊपर गए तो दिखता। अभी आए हम लोग, वो जाकर आए, वो गुफा में जाके आए, बहुत अच्छी बात। तो ये मस्जिद जो है तो मस्जिद का नाम कोए शामक है और जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह वो मस्जिद में नमाज अदा करते थे और फिर यहाँ पे आके जो है तो छिल्ले में बैठ जाते थे। तो उसको गुफा भी बोलते, छिल्ला भी बोलते। हाँ, मस्जिद बनी हुई थी ना। जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह इस जगह पे थे, लेकिन जब तक बुजुर्गी थी, अपने अच्छे थे तो वो मस्जिद में बैठते थे। फिर उनके खुद्दाम हजरात ने वो आपको जो है तो नीचे बुला लिए। तो वो जब एक जमाने में ऊपर रहा करते थे जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह की, जाता नहीं था कोई, सिर्फ खुद्दाम हजरात उनके जो लोग हैं वो जाते थे और फिर आ जाते थे।
उनका भी मामला बहुत जलाली था। तो फिर थोड़े ज़ईफ़ हो गए, फिर आपको पढ़ाई इबादतें ख़त्म हो गई, तो फिर आपको नीचे बुला लिया गया। फिर बुरहानुद्दीन औलिया जब उनके बड़े भाई है, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने उनको यहाँ पे भेजे, तो फिर उनकी लेकिन इंतकाल के बाद में आया। जरजरी बख्श का इंतकाल पहले हुआ, बुरहानुद्दीन औलिया का बाद में हुआ। राजू खत्ताल इसके लिए है कि आप इबादत रियाजत में जो है तो आपने नफ्स को ख़त्म किए थे और ग़िज़ा बहुत कम खाते थे। अब इसमें बहुत सवाल आते हैं हमारे पास। तो दूसरे जो लोग हैं बगैर सिलसिले के, भाई ये खत्ताल का मतलब बताओ, ये जंग में जाते थे तो क्या करते थे? नहीं, इन्होंने अपनी नफ्स को ख़त्म करे, जब जाके आपको खत्ताल का लक़ब मिला, हज़रत राजू खत्ताल। बहुत ग़िज़ाएँ बहुत कम खाए, बहुत ही कम ग़िज़ा खाए अपने, और इबादत को बहुत अच्छे पैमाने पे आपका ख़ानदान आले रसूल है, औलाद अली है, और ज़ैनुल आबिदीन के 7वें पुरुष के पोतरे हैं आप। माशाअल्लाह। खादिम साहब के मुताबिक हजरत सैयद राजू खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का अपने दौर में बहुत जलाल था। स्थानीय रिवायत के अनुसार उस समय मुकद्दस बारगाह में से कोई परिंदा नहीं गुजरता था। जब यहाँ ऊपर से परिंदा गुजरा तो परिंदे के 2 टुकड़े हो गए और वहीं उसी परिंदे को दफनाया गया, जहाँ आज भी वो परिंदे की मजार मौजूद है। इसलिए ये जगह परिंदे की मजार के नाम से मशहूर हो गई। खादिम साहब ने यह भी बताया कि बारगाह के अंदर की कैफियत और बाहर की कैफियत में फर्क महसूस होता है। हर इंसान का एहसास अलग हो सकता है, लेकिन ऐसी मुकद्दस जगहों पर पहुंचकर इंसान कुछ देर के लिए दुनिया की भाग दौड़ से दूर होकर अपने रब को याद करता है। समय के साथ यहाँ लोगों का आना जाना बढ़ता गया। अकीदतमंद अपनी उम्मीदें और मुरादें लेकर यहाँ हाजिर होते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। मुराद पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। औलिया कराम उसके नेक और मकबूल बंदे हैं, जिनकी बारगाह में लोग अदब और अकीदत से हाजिर होते हैं। तो आज के इस रूहानी सफर में हमने खुल्दाबाद शरीफ के 2 मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत की। हजरत जरजरी ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस चिल्ला, जिसने हमें इबादत, जिक्र और अपने नफ्स की इस्लाह का पैगाम दिया, और हजरत सैयद राजू खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, जिसे जलाल, रहमत और परिंदे की मजार की मशहूर स्थानीय रिवायतों से जुड़ी हुई है। इन दोनों जगहों की रिवायतें अलग हैं, लेकिन दोनों हमें अल्लाह की याद, नेक अखलाक और इस्लाम का पैगाम देती है। और अल्लाह ताला इन औलिया कराम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके सदके हम सब की परेशानियों, आफतों और बलाओं को दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।